Hello students, this is Bhagyesh sir. Hope you are all doing well these days. Today we shall go with part 2 of lesson 7, Glimpses of India, and the name of the lesson is Kurg. You could see some images on the screen which we are going to discuss during the course of the explanation. Well, let us see what is this lesson about. The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. The lesson is giving us the clear picture about the smallest district of Karnataka state and its people. The place has an amazing weather throughout the year with enough rain during the monsoon season. पूरे साल इस जगह का जो वेदर है वो काफ़ी अमेजिंग रहता है और यहाँ बारिश भी इनफ मात्रा में देखी जाती है. द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट. यहाँ के जो लोग हैं कुर्गीज जिनको बोला जाता है वो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पीपल माने जाते हैं. कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन. इस रीजन का जो मेन क्रॉप है वो कॉफ़ी है. A variety of animals can be found here, while the place is surrounded by beautiful Brahmagiri hills, islands, and Tibetan settlement. The description says that the place is very beautiful with Brahmagiri hills, various islands, and Tibetan settlements. Well, midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Mysore and coastal region of Mangalore के बीच में ये जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसको कुर्ग नाम से जाना जाता है. It seems that it has come from the heaven. It is so beautiful that it is said that it must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hill is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. ये जो एरिया है which is surrounded by hills is inhabited by a proud race of martial men. मार्शल का मैं मतलब यहाँ हम करेंगे लड़ाकू और योद्धा टाइप जो प्रजाति होती है वो. ब्यूटीफुल women. Here you can see in the picture the martial men, very stout and sturdy people of Kurg. You can see the beautiful women of the Kurg and even the wild creatures. Kurg, or we call it Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest. ये जो कुर्ग है जिसको कोडागू नाम से भी जाना जाता है ये कर्नाटक स्टेट का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और दिस इज सेड टू बी द होम फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. पूरे साल ग्रीनरी से आच्छादित रहने वाले जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पाए जाते हैं. स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन भी यहाँ पाए जाते हैं पूरे साल के दौरान. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. यहाँ के जो ग्रीनरी से आच्छादित जो जंगल है वो इस एरिया के 30% को कवर किए हुए हैं. ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मॉनसून की सीज़न जब होती है तो यहाँ काफ़ी मात्रा में बारिश होती है और यहाँ के जो विजिटर्स होते हैं ये उन दिनों में इस जगह से दूर रहना पसंद करते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. विजिटर्स के आने का जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो सितंबर महीने में शुरू होता है और मार्च तक चलता है. करीबन 6-7 महीने ये जो कुर्ग है वो विजिटर्स के लिए एक ब्यूटीफुल प्लेस साबित होती है विजिट करने के लिए. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. और even during the visitors are there, दिन के दौरान बारिश की छोटी मोटी शावर्स होती रहती है. The air breeze of invigorating coffee
यहाँ की हवा में ताजगी से भर देने वाली कॉफ़ी की स्मेल हर हमेशा महसूस की जाती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर। यहाँ के वेरियस कॉर्नर्स में कॉलोनियल बंगलोज पाए जाते हैं जो यहाँ के पेड़ों के नीचे एक कतार में बने हुए हैं। Here you can see in the picture the evergreen rainforests and even the coffee plantation can be seen on the screen. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. माना जाता है कि ये दूसरे एरिया से अलिप्त रहने वाले जो कुर्गी पीपल हैं वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट से आए हुए हैं। As one story goes, एक कहानी के मुताबिक a part of Alexander's army, सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर जो दुनिया को जीतने चला था उसकी सेना moved south along the coast and settled here. वो इंडिया में भी आया था और साउथ में जब वहाँ कोस्टल रीजन पे जब सेटल हुई थी उसकी आर्मी, when return became impractical, जब वहाँ से वापस जाना impractical मतलब मुनासिब नहीं था उनके लिए, these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition. उस आर्मी के जो सैनिक थे उन्होंने वहाँ की लोकल जो फीमेल थी उनके साथ शादी कर ली और उनके द्वारा जो संतानें पैदा हुई, प्रजाति पैदा हुई, वो एक मार्शल ट्रेडिशन की प्रजाति है, एक लड़ाकू योद्धा प्रजाति मानी जाती है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। यहाँ की जो मैरिज सिस्टम है, वहाँ के जो अलग अलग तौर तरीके रीति रिवाज है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग पाए जाते हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat. You can see in the picture, the men here are seen in the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavuz. यहाँ के जो कोडावूज है, the people are known as Kodavuz. They are seen generally in the black coat and embroidered dupatta. It is said waist belt known as कुपिया। इस वेस्ट बेल्ट को कुपिया नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स, ये काफ़ी सिमिलर है, द कुफियाज वॉर्न बाय द अरब पीपल के द्वारा जो ऐसा वेस्ट बेल्ट पहना जाता है जिसको कुफिया नाम से जाना जाता है, इसे काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए एक कहानी ये भी बनती है कि ये अरब प्रजाति से आई हुई प्रजा है। एंड द Kurds. Here you can see the people of Kurg, which resemble Arabs and Kurd people. Kurgi homes have a tradition of hospitality. कुर्ग में रहने वाले जो कुर्गीज हैं वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. जब यहाँ के विजिटर्स इनके घर में मेहमान नवाजी का आनंद लेने आते हैं तो ये जो कुर्गीज है वो अपने सन या अपने फादर के द्वारा जो बहादुरी भरे पराक्रम किए गए थे उनकी कहानी सुनाने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. इंडियन आर्मी में जैसे सिख रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट होती है, उसी तरह से कुर्ग रेजिमेंट भी है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज कुर्गी। इंडियन आर्मी में जो फर्स्ट जनरल चुने गए थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। हियर यू कैन सी द कुर्ग रेजिमेंट एंड इन द सेकंड पिक्चर you can see General Kariyappa, who was the first chief of the Indian Army. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without license. ये कुर्गीज या कोडावू के जो लोग हैं जो इंडियन आर्मी में है उनको पूरे देश में बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स लेके जाने की परमिशन भी दी गई है।
The river Kaveri obtains its river from the hills and forests of Coorg. रिवर कावेरी है, उसका जो जल का स्रोत है वो हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग माना जाता है. महासिर, a large freshwater fish, abound in these waters. महासिर नाम की ये जो फ्रेश वाटर फिश है वो इस नदी के पानी में भारी मात्रा में पाई जाती है. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. किंगफिशर को आप पानी में डाइव लगाते हुए यहाँ देख सकते हैं, जो इन मछलियों को पकड़ के बाहर आते हैं पानी में से. यहाँ स्क्विरल और लंगूर्स के द्वारा फ्रूट खा के पानी में गिराना एक आम घटना है, बिकॉज दे एंजॉय seeing the ripple made in the water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत. महावत भी देखे जा सकते हैं एलिफेंट को पानी में स्नान कराते हुए. Here you can see the image of kingfisher diving into the water and coming out with the fish in the beak. And here you can see the picture of elephant being bathed by Mahavat. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. The most laid-back का मतलब है कोई स्फूर्तिविहीन जो व्यक्ति होता है वो भी यहाँ के एटमॉस्फेयर को और यहाँ की जो रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग जैसी पानी में खेले जाने वाले जो गेम होते हैं वो, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग को देख के स्फूर्ति से भर आते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर. यहाँ के जो वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं अलग अलग जगह पे, वो यहाँ के जो ट्रैकर्स होते हैं उनकी फेवरेट जगह है. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. अगर आप कुर्ग में हो तो यू विल बी सराउंडेड बाय लॉट ऑफ बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild animals. कुर्ग में अगर आप हो तो आपको macaques, here you can see the picture, ये है मलाबार स्क्विरल, काफ़ी कलरफुल होती है. Langurs and even the slender lories. Such animals are seen on the trees of Coorg, but writer prefer to see more the wild elephants in Coorg. The climb of the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जब आप ब्रह्मागिरी हिल के टॉप पर जाते हो और वहाँ से 360 डिग्री एंगल में जब आप कुर्ग के दर्शन करते हो तो ये एक मिस्टी लैंडस्केप का कुर्ग का आपके नज़र में आएगा. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा. यहाँ बने जो रोप के ब्रिजेस है उसके ऊपर जब आप चलते हो तो 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्गधाम आइलैंड आपकी नज़र में आता है. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a famous. Bailakupi नाम की जगह पे तिबेटियन सेटलमेंट के जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं उनको वहाँ देखना एक बोनस एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वहाँ के विजिटर्स के लिए. The monk in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. यहाँ के जो मंक्स होते हैं जो इस सेटलमेंट में रहने वाले, जो ज़्यादातर रेड, ऑकर और येलो कपड़ों में पाए जाते हैं, they are one of the many surprises that wait to be discovered by the visitor. यहाँ विजिट करने आने वाले जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए इन मंक्स को देखना एक आनंददायी अनुभव रहता है. And they are said to be the heart and soul of India
right here in the Coorg. You can see the rope bridge here. You can see the Buddhist monk here. And the Coorg, in true sense of the term, is the soul of India. Hope you have understood, students. Thanks for watching.